Hello everyone, dear students. Our today's topic is my childhood, मतलब मेरा बचपन. Chapter 6. This chapter is actually an autobiography of APJ Abdul Kalam. I think this name is most well known to all of you. APJ Abdul Kalam is Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. So first, before starting the chapter, let us know about him. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, which is in Tamil Nadu. He was also the 11th President of India. He studied physics and aerospace in engineering. He is also known as the Missile Man of India. He is known by the name, Missile Man of India. He died in Shillong on July 27, 2015, and the reason of his death was cardiac arrest, means because of heart attack. He was an Indian scientist and a politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs. He was President of India from 2002 to 2007. So let's move towards the chapter now. So here my childhood means the childhood of APJ Kalam. So here we are going to read what kind of childhood he led in his life. So let's start. Have a look over here before you read. Can you think of any scientist who have also statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, nuclear technology guided India into the 21st century, and he became our 11th president in 2002. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. If you remember, in class 7th we read one of the chapter of APJ Kalam, and among them we read about this book Wings of Fire. This book was written by Abdul Kalam. So let's move towards the chapter. Now here Abdul Kalam is narrating his autobiography. So here I is Dr. Kalam. I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Now here Abdul Kalam is saying that he was born in a middle class family which is neither rich nor poor, and in an island town of Rameshwaram. Island town of Rameshwaram यानी एक ऐसा इलाका जो आइलैंड से घिरा हुआ, ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मीन्स वेरी पूर्व, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तत्कालीन, जस्ट इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. My his father named Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कस्टमरी एजुकेशन, यानी जैसे कि स्कूल भेजते हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, पढ़ाई के लिए. तो उन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन ले रखा था, ना कोई डिग्री ना कोई ऐसी कि हाँ मैंने इसमें इतनी पढ़ाई की है, बस ही टुक अ फॉर्मल एजुकेशन. नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास ज़्यादा कुछ वेल्थ यानी पैसा प्रॉपर्टी था. डिस्पाइट यानी इसके बावजूद, disadvantages he possessed मतलब होना, great innate wisdom and a true generosity of spirit. great innate wisdom, innate मतलब कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी बहुत ही समझदार, और वो सारी क्वालिटी जो एक एजुकेटेड पर्सन में होनी चाहिए वो सब उनमें थी. हाउ टू टैकल फैमिली, हाउ टू टैकल people in a society, neighbors, and a true generosity of spirit, of the man who was full of spirit. तो उनमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यानी कि हम्बलनेस थी, ठीक है. और दूसरी बात, ही वॉज एन इननेट पर्सन, यानी जन्म से ही गुड विद हैविंग अ गुड क्वालिटीज़. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. आइडियल हेल्पमेट जो हमारी हमेशा पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं, और आइडियल मतलब आदर्श.
जिसको हम देखकर हम उसको फॉलो करते हैं। तो एज अ बेस्ट पार्टनर ही वॉज हैविंग वॉज अब्दुल कलाम्स मदर एंड हर नेम वॉज आशी अम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of a family put together. मतलब ये कि उनके घर में रोज़ कोई ना कोई चलते ही रहता था. कोई भी आए उसको बिना खाना खिलाए वो लोग नहीं भेजते थे. तो उनके घर पे जो वो जितना बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी, तो हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते. वी कुड नॉट इवन काउंट हाउ मैनी पीपल एग्जैक्टली शी फेड मतलब उनको भोजन कराना कितने. तो आई एम क्वाइट सर्टन मीन्स श्योर कि फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. यानी सारे मेंबर्स को अगर आप करके मिला लो, उससे कई गुना ज़्यादा शायद बाहर के लोग हमारे यहाँ रोज़ खाना खाते थे. I was one of many children. They had many children, they had a big family, and he was among one of them. A short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. तो undistinguished मतलब ordinary, simple सा बच्चा, born to tall and handsome parents. तो we lived in our ancestral house. Ancestral यानी हमारे पूर्वजों का जो मकान होता है पुराना बहुत, उसको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल हाउस. इट वॉज बिल्ड इन द 19th सेंचुरी. ओके, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस यानी बड़ा सा मकान, पक्का मकान. एंड इट वॉज मेड ऑफ लाइमस्टोन, चूने के जो पत्थर होते हैं वो, और ब्रिक्स यानी ईंटों से बना हुआ मकान. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. मॉस्क स्ट्रीट जहाँ पर मस्जिद आती है उसी रोड पर इनका मकान था रामेश्वरम में. माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर यू कुड सी हियर, ऑस्टर मीन्स सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर. वो नेचर वाइज लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल थी लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट भी थे. यूज टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. मतलब ये कि इनके फादर की एक हैबिट थी कि वो अननेसेसरी फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं करते थे. जैसे सोफ़ा ही चाहिए, एसी होना ही चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और जो फालतू खर्चे होते इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करते थे. ठीक है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. लेकिन जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनमें कभी इन बच्चों को कमी नहीं आने दी. जैसे कि खाना है, अच्छा खाना बनता था, दवाई की जगह पर दवाई भी, और अच्छे कपड़े में. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो अब्दुल कलाम का ये कहना है, he want to say here that he had a very secure childhood. Secure यानी जो उनके पेरेंट्स, जिस तरह के पेरेंट्स थे वो अपने आप को बहुत लकी और सिक्योर, सुरक्षित महसूस करते थे. बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. मटेरियली यानी कि भौतिक फिजिकल थिंग्स, यानी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे भी देते थे. तो इसमें भी उनको कोई चीज़ की कमी नहीं आई. और इमोशनली भी यानी उनको हर तरह से प्यार, सपोर्ट भी मिला अपने पेरेंट्स का. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. 1939 when the world war broke out, he was 8 years old. I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. मतलब कि when this world war broke out in 1939, he don't know why, what is the reason behind that. लेकिन अचानक से tamarind seeds मतलब इमली के बीज की डिमांड आई मार्केट में. ठीक है. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. तो वो दिन भर उन इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे. And he used to sell them in a provision shop. Provision यानी ग्रॉसरी शॉप, किराने की दुकान जिसको हम कहते थे, वहाँ पर ये बेच के आते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. प्रिंसली सम मतलब बहुत ही आयरनिक कह सकते हैं, यानी बहुत ही कम, छोटी अमाउंट, यानी 1 आना मिलता था. यानी पूरे दिन में जो इकट्ठा करते थे वो टैमरिंड सीड्स, उसका उनको 1 आना मिलता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन,
ब्रदर इन लॉ मतलब यहाँ पर जिया जी, उसके जीजा जी, ठीक है, अब्दुल कलाम के, would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनमन मतलब कि एक न्यूज़पेपर आता था दिनमनी। और उनके जो जिया जी है वो जब वॉर के बारे में जो भी स्टोरीज सुनाते थे उनको, ठीक है, तो वो कहाँ पर उन हेडलाइंस में वो उस वॉर के बारे में पढ़ते थे इस न्यूज़पेपर में। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, तो आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यानी वो जिस एरिया में रहते थे वो एरिया बिल्कुल हटके था, बिल्कुल अलग थलग था। तो इस वजह से वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट उनकी एरिया पे नहीं आया। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, यानी फिर लोग डिमांड आने लग गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलाइड फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस है ये जो आर्मी है यूके, यूएसए और रशिया की, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो लोगों को फोर्स किया जाने लगा कि ये इन आर्मी को ज्वाइन करे, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों में वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। तो कैजुअलिटी मतलब हम कह सकते हैं बुरी घटना, एक हादसा, बुरी घटना, पहली घटना वो थी, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स टू स्टॉप, किसी भी काम को रोक देना, ऑफ द ट्रेन, ठीक है, हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो सबसे बड़ा बुरी घटना ये हुई कि सारी ट्रेनों को रोक दिया गया। हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन, यानी जो भी स्टेशन वहाँ उस स्टेशन से होकर क्रॉस करती उन सारी ट्रेनों को रोक दिया गया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड, यानी उस समय जो न्यूज़पेपर आता था वो ट्रेन्स के थ्रू आता था, ठीक है, और स्टेशंस को उस समय फिर जब इन ट्रेन्स को रामेश्वरम स्टेशन पर रुकने से मना कर दिया गया था, ठीक है, इस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। तो अब न्यूज़पेपर तो ट्रेन से ही आते थे, तो वो चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंकते थे और जो इनको होल्ड करने होते थे, पकड़ने होते थे। रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, that forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch bundles, and is naturally I filled the slot. Now this paragraph actually mean कि उस समय जब ट्रेनों को रुकने से मना कर दिया गया स्टेशन पे, तो जो न्यूज़पेपर के बंडल्स ट्रेन से बाहर फेंके जाते थे उनको होल्ड करने के लिए उनके जो कज़िन थे अब्दुल कलाम के, उसका नाम था शमशुद्दीन, वो ये काम करता था न्यूज़पेपर बांटने का रामेश्वरम में। तो उसको एक हेल्पर की ज़रूरत थी कि जब भी बंडल्स फेंके जाए तो उनको पकड़ना है, ठीक है, चलती ट्रेन से। तो ऑब्वियसली ही टुक द हेल्प ऑफ कलाम। आई फिल्ड द स्लॉट, यानी उस जगह पर मुझे उसने लिया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस यानी फर्स्ट सैलरी, तो उसको भी पैसा मिलने लग गया इस काम के लिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब मुझे मेरी मजदूरी के पैसे मुझे मिले तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मेरे हाथ में सैलरी आई हो ऐसे। सो आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग। Every child is born with some inherited characteristics. So inherited मतलब कि हमको हमारे फोर फादर से, यानी कि किस बच्चों में उनकी फैमिलीज़ में से किसी न किसी मेंबर की कोई ना कोई क्वालिटी उसमें होती है, दो फीचर्स से, चाहे वो चेहरे से हो या उसके अंदर कोई एक ऐसी आदत होती है जो उसके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। तो इट इज़ सेड दैट एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into a specific socio-economic and emotional environment. तो specific यानी स्पेशल, ठीक है, socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of
अथॉरिटी। और उसी बच्चे को हम इस तरह से ट्रेन करते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे रहना है, वेदर इट इज़ योर फैमिली मेम्बर्स और इन द सोसाइटी। I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in goodness and deep kindness. मतलब ये कि ये कलाम वांट टू से डेट उनको अपने पेरेंट्स से क्या मिला, ऑनेस्टी यानी अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ऑनेस्टी, वफादारी, सेल्फ डिसिप्लिन, हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, एंड दिस थिंग ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, मदर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस लोगों के प्रति हमारी दया भरी भावना होनी चाहिए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही सारी क्वालिटीज़ उनके पेरेंट्स ने उनके भाई बहनों में भी दी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, उनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदम and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. Now, Abdul Kalam actually belonged to Muslim family, isn't? But they lived in Rameshwaram. रामेश्वरम हम कह सकते हैं कि एक हेरिटेज स्पॉट है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ ब्राह्मण फैमिलीज रहते हैं। और इनके जो 3 फ्रेंड थे वो तीनों ऑर्थोडॉक्स यानी बहुत ही ट्रेडिशनल, पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी जिसको हम कह सकते हैं। तो इन तीनों की फैमिली ब्राह्मण फैमिली थी। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंग आवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। मतलब ये कि एज चिल्ड्रन हम बच्चे थे तो हमने कभी भी ये डिफरेंस हम में नहीं देखा, रिलीजियस डिफरेंस, कि तुम हिंदू, अब वो ब्राह्मण है और मैं मुस्लिम हूँ। और इसका क्या रीज़न था? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, यानी हमारी जैसी भी परवरिश रही, पर ये हमारी चारों की दोस्ती के बीच में ये चीज़ें नहीं आई। द कास्ट सिस्टम। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। और ये जो एक फ्रेंड था इनका रामनाथ शास्त्री, वो रामेश्वरम के सबसे बड़े टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी का लड़का था। Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his, here you could see, father. यानी कि फिर बाद में रामनाथ ने अपने फादर की इसी परंपरा को फॉलो किया, वो भी रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्ट बन गए। अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो वहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, जो तीर्थयात्री, ठीक है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बसेस वगैरह जो भी अवेलेबल कराना, उस बिज़नेस में चला गया। श्री प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर्न रेलवेज, और जो शिव प्रकाशन है वो कैटरिंग में चला गया, ठीक है, साउथ की रेलवेज में। तो हियर दिस फ्रेंड्स वेंट इन डिफरेंट बिजनेस, एंड यू कुड सी हियर द पिक ऑल्सो। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, सीताराम कल्याणम यानी सीताराम के जब विवाह होता है, जो फंक्शन होता है, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Ram from temple to the marriage site. तो जब सीताराम की कल्याणम यानी शादी होती थी, तो जो बोट्स अरेंज की जाती थी उनकी मूर्ति को टेम्पल से लेकर मैरिज साइट, यानी जहाँ पर इनका विवाह अरेंज करते हैं, वहाँ पर ले जाने तक के लिए लोगों को जो बोट्स की ज़रूरत पड़ती थी। इट वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, यानी वो जो मंदिर था जहाँ पर ये शादी की सेरेमनी होती थी सीताराम की, तो वो इट वॉज इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और उसको कहते थे राम तीर्थ, जो हमारे घर के काफ़ी पास में था। तो इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। तो रामायण के जो भी इंसिडेंट्स होते थे वो सारे इनकी मदर और इनकी दादी इन लोगों को सुनाती थी।
Okay, so today we will complete chapter till it, and next part we will complete in a next video. Thank you.